السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگا دیے گا معزز محترم موقر حضرات علماء کرام، میری نگاہوں کے سامنے موجود حضرات سامعین، حفاظ کرام، علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ، دوستو، ولید پور بھیرا اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے باذوق، زندہ دل، ادب نواز مداحان مصطفیٰ، یقیناً آج کی یہ شب اور آج کی یہ تاریخ ولید پور کے سنہرا بابوں میں سے ایک ہے، جن کا آغاز اور افتتاح انشاءاللہ بہت جلد ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کے دیار میں میری پہلی حاضری اور جب میں طفل مکتب تھا تب سے لے کے جب تک عربی کی تعلیم حاصل کی، جب تک بچپن سے لے کے اب تک میں نے مئو، اعظم گڑھ اور اطراف و اکناف کی تہذیب کو دیکھا بھی ہے یوٹیوب کے ذریعے، اور شورائے اعظام سے ہم نے سماعت بھی کیا ہے۔ بلا شبہ اعظم گڑھ اور مئو میں ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ادبا اور شورا حضرات اکابرین اور اسلاف کو جنم دیا۔ اس مٹی کے نونہالوں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشاعرہ اور بالخصوص نعتیہ مشاعرہ کس طرح سے سننا چاہیے اور ان کے کیا آداب ہیں، کیا روایات ہیں، اس لیے کہ آپ نے دنیائے ادب کو اپنی روایتوں سے، اپنی تہذیب سے اس بات کا پیغام اور یہ سبق دیا ہے کہ نعتیہ مشاعرہ کس طرح سننا چاہیے اور کس طرح سامعین کو بیٹھنا چاہیے، آداب کیا ہیں، تہذیب کیا ہے، روایات کیا ہیں، یہ دنیا آپ سے سیکھتی ہے۔ لیکن شاید آج میری نگاہ یا تو کج ہے یا شاید آپ منظم طریقے سے بیٹھنے کو تیار ہوا چاہتے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے جو ترتیب ہے، تقریباً 100-200 لوگ ادھر، تقریباً 200-300 لوگ پیچھے، میری بائیں جانب تقریباً 50 کی تعداد میں لوگ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی قسطوں میں آپ حضرات مشاعرے کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسا احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس مشاعرے کو شروع کرنے کے لیے اور اس مشاعرے کے آغاز کے لیے ابھی قلبی طور پہ آپ ہی تیار نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ منظم طریقے سے بیٹھیں گے نہیں، محفل مشاعرہ میں آ کر جب تک اچھی طریقے سے آپ بیٹھ کر یہ ثبوت نہیں دیں گے کہ ہاں میں مرتب ہو چکا ہوں، تب تک پروگرام کا آغاز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے تمام نوجوان دوستوں کو، طلبہ ساتھیوں کو، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے نوجوان دوستوں کو بہت ادب کے ساتھ آپ کا مہمان ہونے کے ناطے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جگہ کو پر کر لیں تاکہ مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ اگر میری باتوں پہ دو چند لوگ عمل کریں گے، انشاءاللہ آگے کی طرف آئیں گے تو خود بخود انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے والے، آپ کے اگل بگل میں جو لوگ ہیں وہ آگے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ جب جہاز پر محترم دل خیر آبادی صاحب تشریف لائیں گے، محترم شاداب آزمی صاحب تشریف لائیں گے، محترم آفتاب رہبر صاحب کر کے تبھی تشریف لائیں گے، محترم زاہد جہانہ گنجوی صاحب تشریف لائیں گے، اور ڈائز پر دیگر محترم فاروق دلکش صاحب اور دیگر شعراء تشریف لائیں گے، تب میں آ کر بیٹھوں گا تو شاید آپ کا مشاعرہ اور آپ تاخیر کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور میں اس نتیجے پہ نہ
पहुंच सकूं कि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। इसीलिए मऊ और वलीदपुर, भीरा, खैराबाद और अतराफ व अकनाफ से आए हुए तमाम नौजवानों को, तमाम तलबा दोस्तों को, तमाम साथियों को, तमाम हुफ़ाज़े किराम को, उलमाए किराम को इंतहाई अदब के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि छोटे छोटे बच्चे जो आम तौर से मजलिसों में घूमते होते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे इलाके के मक्स हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जिन पे हमको गर्रा और ज़ोम है, जिन पे हमें फख्र है कि आप हुए मुशायरा हैं, आप अगर इस तरह से हाथ बंद करके और इस तरह से खड़े रहेंगे तो शायद मुझे थोड़ी सी इज़्तिराब और बेचैनी महसूस हो और मैं उस नतीजे पे न पहुंच सकूं, मैं आपसे वो गुफ्तगू न कर सकूं, मैं आपको वो शेर न सुना सकूं जिनके लिए मैं अपने आप को तैयार किया हूं और आपको सुनाने के लिए इस इलाके में, इस तैयार में मेरी पहली हाज़िरी। तो आपके मजाक और आपके ज़हन और आपसे गुफ्तगू करने की जो तबीयत है, बहुत दिनों से तबीयत आमादा है कि अच्छी जमातों के दरमियान कुछ अच्छे शेर पढ़े जाएं और फिर नतीजा अखद हो कि मऊ, वलीदपुर, भीरा कितनी दुआएं देता है कि यहाँ से जब घर लौटूं और अपने बिहार वालों के दरमियान, गांव वालों के दरमियान जाऊं तो बाबू आज़मी मुशायरा मीडिया, जो तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम सूबों के लोग देखते हैं इस चैनल को और इनके फेसबुक पेज को, और तमाम अज़ला के लोग इनके पेज से जुड़े हुए हैं, अभी आपको ये देखेंगे और देखने के बाद शायद वो कह सकें कि न तो नाज़िम मुशायरा कामयाब रहा आपके प्रोग्राम में, न मऊ की जो तारीख रही है उस तरीके से लोग यहाँ बैठकर सुन रहे थे। वरना मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं। मेरी निगाह जहाँ तक देख रही है, यहाँ देख लीजिए आप खुद ही नजर उठा के, जहाँ देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन जो सामने की जगह है वो खाली है। तो आप आगे बढ़ के आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कहना पड़ेगा कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामाने नबी होते तो आ जाते यहाँ अंदर, वहाँ बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे हैं। देखिए ये जो नतीजा है ना नातिया मुशायरे में ताली बजाने, वो भी मऊ की सरजमीन पे अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि आप हज़रात के खड़े रहने की वजह से, आपके थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, अगर आप इन सफों में बैठे होते तो अपने बच्चों को रोकते कि ये नातिया मुशायरा है, या तालियां नहीं बजाई जाती, सुभान अल्लाह की सराहें बुलंद की जाती है। बताएं जितने लोग जिंदा दिल है सब सुनने को तैयार है, मुशायरा शुरू किया जाए, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं, चीख रहे, आवाज साफ आ नहीं रही है। पूरा मजमा एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए आज के 50 साल 100 साल पहले मऊ की क्या तारीख रही, मैं बहुत उस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन ये सरजमीन और ये इलाका बहुत जरखेज रहा है। मैं जब खैराबाद पहुंचा मोहतरम दिल खैराबादी साहब के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि जहाँ तुम जा रहे हो वलीदपुर, भीरा, ये उसी अजीम इनकलाबी और आफाकी शख्सियत की सरजमीन है जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तलामदा और ऐसे शागिर्दों को जन्म दिया जो हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर इस मिट्टी के अलमबरदार बनके इल्म और अदब की खिदमत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि ये सरजमीन हजरत मौलाना एजाज साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहू की है, और ये उनकी जो जाए पैदाइश है, उनका जो गांव है यहाँ से बहुत करीब है भीरा,
محترم دل خیرآبادی صاحب نے جب اس بات کی اطلاع دی تو بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیے مشاعرے میں جو آپ کچھ انتشار دیکھ رہے ہیں، پروگرام اب تک شروع نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کنوینر مشاعرہ بہت دل عزیز نوجوان اور بہت ایکٹیو اور متحرک نوجوان محترم عالی جناب شاہد جمال صاحب، ان کا حکم یا کمیٹی کے کسی افراد کا حکم یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مشاعرے کا آغاز باضابطہ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جو فرمائیں گے اس علاقے کی ایک عظیم سیاسی اور سماجی شخصیات محترم عالی جناب محمد علی صاحب، سابق چیئرمین ولیل پور، ان کی بھی آمد دائز پر ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ ان کی آمد کے بعد جب تک صدر مشاعرہ تشریف نہیں لائیں گے مشاعرے کو باضابطہ کس طرح سے شروع کر دیا جائے۔ گھر کے گارڈین کی اجازت کے بغیر گھر کے کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مجلس اور اپنی محفل میں ایک ایسے صدر کا انتخاب کرتے ہیں جن کی صدارت اور جن کی تابعداری میں وہ پروگرام مکمل افتتاح سے انجام کو پہنچے۔ بہرحال میں آپ سے پھر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ مئو کی سرزمین علم و ادب کے حوالے سے بہت معروف سرزمین ہے۔ اس سرزمین نے بڑے بڑے دانشور قداور علماء کرام دیے، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں کے فیض یافتگان اور اس مٹی سے تعلیم حاصل کر کے دنیا علم و ادب کو روشن کرنے والی شخصیات الحمدللہ بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں آپ جہاں جائیں گے سینکڑوں کی تعداد میں پا جائیں گے کہ فلاں صاحب مدرسہ منبع العلوم خیرآباد سے پڑھے ہیں، فلاں صاحب فیض عام مئو سے پڑھے ہیں، فلاں صاحب تعلیم الدین سے پڑھے ہیں، دارالعلوم مئو سے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اکابرین ہندوستان بھر میں اس مٹی کے نام کو نمایاں کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سب بہت منظم طریقے سے دیکھیے، یہ بہت ادب کا مقام ہے اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان اس علاقے کی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیتوں میں سے ایک جو آپ کے ہر درد میں، آپ کے ہر دکھ میں، آپ کے ہر مصیبت میں، آپ کے ہر خوشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بے بات نمائندگی کرتے ہیں اور آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنے دل اور اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، وہ محترم نام آج کے اس خوبصورت مشاعرہ کے صدر باوقار اور آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے اس علاقے کی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیت محترم عالی جناب محمد علی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ عالی جناب محترم شاہد جمال صاحب تشریف لائیں، اور جو ہمارے مہمان شاعر یا میزبان شاعر ڈائز پر ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ ڈائز پر نہیں آئے ہیں تو اب آپ ان کو مہمان خانے سے ڈائز کی طرف لائیں، کیونکہ یہ مشاعرے کا بہت قیمتی وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو سب بیدار ہو کے بیٹھے ہیں، زندہ دل ہو کے بیٹھے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ خوبصورت سامعین اور اس تعداد میں موجود ہمارے نوجوان میسر شاید ہم اور آپ کو نہیں ہوں۔ دیکھیے محترم سامعین، آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان بہت مشکل اور پرفتن دور سے گزر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کی یہ خصوصیت اور ہندوستان کا یہ خاصہ رہا ہے، ہندوستان کا یہ درہ امتیاز رہا ہے کہ اس مٹی نے ہمیشہ ایسے نایاب جوہر اور ایسے قیمتی لوگوں کو جنم دیا ہے جو ہندوستان کی سیکولرزم، ہندوستان کی یکتائیت اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب سے محبت اور ہمارے تمام دینی پروگراموں سے، مذہبی پروگراموں سے اور ان کے شعاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت دینے کے لیے ہمارے درمیان اس وقت اسی حلقہ اور اسی علاقے کی ایک بہت مشہور سماجی شخصیت
शख्सियत और हमारे दरमियान इस वक्त आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे इस हल्के का एक बड़ा नाम मोहतरम इज्जत माब आली जनाब अविनाश जायसवाल साहब जो अविनाश जायसवाल साहब उर्फ टिंकू हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हम मुशायरा कमेटी की तरफ से अहलियाने वलीदपुर भीरा की तरफ से अपनी तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन और आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ ये पैगाम भी देते हैं, एक शायर है पेहानी के सलमान सफर, उन्होंने बहुत खूबसूरत दो मिसरे कहे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो इन दो मिसरों पर आपको एक मर्तबा तालियां बजाने की इजाजत होगी, सिर्फ इन दो मिसरों पर। पहले सुन ले इन दो मिसरों को कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। देखिए ये कितना खूबसूरत पल है, कितनी खूबसूरत घड़ी है कि ये प्रोग्राम है हुजूर सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह खानी के लिए, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के लिए। इसी मिट्टी में, इसी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे नापाक लोग हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी शख्सियत को मुत्तहम करना चाहते हैं। आपकी सीरत, आपके उसवा और आपकी जात को कार्टून बनाकर दिखाते हैं और आपकी जात को मुत्तहम करते हैं, आपकी शान में गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं अविनाश जायसवाल साहब को कि ये आप सीरत के प्रोग्राम में महफिले नादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगलियां उठाए। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो हुजूर की जात को मुत्तहम करें, बल्कि हम उन लोगों के साथ हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाए, आपके तारीफ के लिए नशिस्तें मुनक़िद करें, आपकी तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए बड़े बड़े इजलास मुनक़िद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हाजिरी और आपका यहाना इस बात की अलामत और इस बात की गवाही है कि आप शातिमे और आप गुस्ताखे रसूल के साथ नहीं बल्कि आप वासिफ़े रसूल के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फरमाए, साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशहाल रखे। मोहतरम सामीन, मैं ये चाहता हूँ, इस वक्त मुझे खुद बेचैनी हो रही है कि मुशायरे का जो कीमती वक्त है वो हमसे निकल रहा है हमारे हाथों से, इसलिए मैं शाहिद जमाल साहब या मोहतरम सामीन, सदरे बावकार और आज के इस मुशायरे की अजीम शख्सियत जो हमारे दरमियान दायज पर तशरीफ फरमा है, आपके इलाके की अजीम शख्सियत और आज के इस मुशायरा के सदरे बावकार मोहतरम आली जनाब मोहम्मद अली साहब साबिक चेयरमैन, उनका हुक्म हुआ कि बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। अगर आप लोग भी तैयार हो चुके हैं ज़हनी तौर पे तो एक मरतबा इजाज़त दें, हाथों को उठा के और बताएं, कहें सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुकर्रमी सामीन, आगाज़े मुशायरा उस खल्लाक़े आज़म के नाम जो धूप का खालिक है, जो छाँव का मालिक है, जो चांद भी बनाता है, सूरज भी बनाता है और कायनात के निज़ाम को भी चलाता है। इनकादे मुशायरा उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा नाम से जिन्होंने बर्फ को सफेदी और सूरज को सुर्खी अता की। इफ्तिताह मुशायरा कायनात की उस अजीम शख्सियत के नाम जिनके इसमें आज़म का विर्द करके सूरज बिखर बिखर जाए और जिनके इसमें आज़म का विर्द करके चांद अपनी तजल्लियों के साथ महक जाए। आगाज़े मुशायरा
सना TVS के प्रोपराइटर और डायरेक्टर आली जनाब मोहतरम शाहिद साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल और खैर मक़दम करते हैं और ऐलियाने वलीदपुर की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह हमारे दरमियान डायज पर अजीम शोराए किराम भी तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम ज़ाहिद जहाना गंजवी साहब, मोहतरम आफ्ताब रहबर साहब और दीगर शोराए इज़ाम भी तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम इंतखाब वलीदपुरी साहब और तमामी जो शोरा हमारे दरमियान डायज पर तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल और खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा नाम से आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान एक और हमारे बिरादराने वतन और समाजी शख्सियत डॉक्टर आनंद साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, खैर मक़दम और वेलकम इस्तकबाल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया अदा करते हैं यानी वलीदपुर, बिलखुसूस नौजवानाने वलीदपुर की तरफ से। तो आइए आज के इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ हम्द बारी ताला से करें। ज़ुबैर अली ताबिश जो बहुत अच्छे गज़ल के एक शायर हैं, उनके दो मिसरे हैं कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। एक मरतबा तालियां न बजाएं, एक मरतबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप सब ने जिम्मेदारी दे दी है छोटे बच्चों को सुभान अल्लाह सिर्फ आप लोगों को कहना है। मैं फिर से इन दो मिसरों को पढ़ूं कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। शायर ने कहा है कि फूल खिल सकते हैं क्या? सुनिएगा हमने बारी ताला के चार मिसरे, अगर मऊ, वलीदपुर, भीरा, खैराबाद और अतराफो अकनाफ से आए हुए आप तमामी सामाईन तक, आप तमाम नौजवान दोस्तों तक पहुंच जाए तो एक एक शख्स की दुआएं चाहता हूं। उमर साहब बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा और नाज़िम जलसा हैं इस इलाके के। मोहतरम ज़ाहिद साहब खुसूसी तवज्जो चाहते हुए ये चार मिसरे के फूल खिल सकते हैं क्या? मौसम बदल सकता है क्या? फूल खिल सकते हैं क्या? मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? फूल खिल सकते हैं क्या? मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? अरे रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या? पाने का बहाना चाहिए। रब को तो रहमत ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं मऊ की सरजमीन पे आके अच्छे शेर पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप हज़रात थोड़ा सा बेदार हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग बैठे सिर्फ वही दाद देंगे और सिर्फ वही सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। जगह की तंगी हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि जो इंतजाम है शायद वो कम हो गया है। आप हज़रात जिन हालात में जिस जगह खड़े हैं वहाँ से शोरा की और जो लोग डायज पे आ रहे हैं आपके सामने उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि ये प्रोग्राम खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता चला जाए। फूल खिल सकते हैं क्या? मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? अरे रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी